Hello students, in this video we are going to continue our study about the trans effect of ligands. What is trans effect? The ability of a ligand to direct the ligand substitution reaction at a position trans to itself. ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸ ਇਫੈਕਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸ ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸ ਇਫੈਕਟ ਗੁੱਡ ਹੁੰਦਾ, ਗੁੱਡ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਆਫ ਟਰਾਂਸ ਇਫੈਕਟ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਵਾਈ ਸਮ ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਆਰ ਗੁੱਡ ਟਰਾਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਸਮ ਆਰ ਵੀਕ ਟਰਾਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਗੈਂਡਸ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸ ਇਫੈਕਟ ਘੱਟ। तो ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਆ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਟਰਾਂਸ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੋ ਬਿਫੋਰ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਦਾ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਆਫ ਟਰਾਂਸ ਇਫੈਕਟ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਫ ਐਨੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ देखो आप इस तरीके लोअर क्लासिस तो पढ़ते आ रहे हैं। दिस इज़ द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ एनी रिएक्शन। हेयर आर द रिएक्टेंट्स एंड हेयर इज़ द प्रोडक्ट। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स ER and this is the energy of products, that is EP. Along this direction energy changes and here we have reaction coordinates for progress of reaction. As we provide the external energy to reactants, the energy of reactants goes on increasing. It reaches a maximum level and then the energy starts coming down and ultimately the products are formed. Here we have the reactants at this level and here we have the products at this level. And this energy or this level signifies the energy of transition state. Transition state की हुंदी है जिहड़ी रिएक्टेंट वर्गी भी लगती हुंदी है ते प्रोडक्ट वर्गी भी लगती हुंदी है। इट इज़ फॉर्म्ड इन बिटवीन ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड इज़ यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एज वैल। तो रिएक्शन दे विच ही बनी, रिएक्शन दे विच खत्म होगी, जस्ट फॉर मूवमेंट ये बनती है तो नाल ही खत्म हो जाती है। और जिहड़ी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी होंगी दैट इज़ द थ्रैशहोल्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। नाउ दिस एनर्जी गैप is activation energy EA, that is ET minus ER, एक्टिवेशन एनर्जी। जिहड़ी एनर्जी असी बाहरों सप्लाई करते हैं रिएक्शन ਨੂੰ स्टार्ट करने ਲਈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਆ, ਰੇਟ ਆਫ ਐਨੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ is inversely related to activation energy। किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो रिएक्शन की स्पीड घट होगी, एक्टिवेशन एनर्जी घट होगी तो रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी। तो बेटा असी चाहते हैं कि साडी रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा हो, तो रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा तां ही हो सकती है जो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी घट हो। फॉर हाई rate of a reaction the activation energy should be lowered or low and it can be achieved। और ये साडे कोल इनू असी किद्दां अचीव कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी नू असी किद्दां घटा सकते हैं। बेटा दो तरीके आ एक्टिवेशन एनर्जी नू घटाउण दे। पहला तरीका की आ, रिएक्टेंट्स की एनर्जी नू इनक्रीज़ कर दो, इनक्रीज़ द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। इट कैन बी अचीव्ड बाय डीस्टेबलाइजिंग द रिएक्टेंट्स नू डीस्टेबलाइज कर दो। डीस्टेबलाइज कर दोगे तो की होगा, रिएक्टेंट की एनर्जी इनक्रीज़ कर जूगी। जे रिएक्टेंट की एनर्जी इनक्रीज़ कर गई, मान लो इत्थे आ गई रिएक्टेंट की एनर्जी एनी होगी, तो आ गैप घट गया एंड दिस गैप ET माइनस ER दैट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी घट गई
तो दूसरा तरीका की आ, बाय स्टेबलाइजिंग द ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट नू स्टेबलाइज कर दो, आ रही साडी ट्रांजिशन स्टेट, इनू स्टेबलाइज कर दो। ਇਹਦਾ मतलब की आ, ਇਹਦੀ एनर्जी नू डिक्रीज़ कर दो, डिक्रीज़ इट्स एनर्जी। जे तुसी ET घटा दोगे तो भी EA घट जूगा, तो जे तुसी ER वधा दोगे तो भी EA घट जूगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी नू डिक्रीज़ करन दे साडे कोल दो तरीके आ, या तो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी घटा दो या रिएक्टेंट की एनर्जी नू इनक्रीज़ कर दो। तो ਜਿਹੜੀਆਂ बेटा ट्रांस इफेक्ट दियाँ दो थ्योरीज़ आ, वो भी इन्हां दो कॉन्सैप्ट्स ते ही बेस्ड आ। द टू theories of trans effect, they are based upon these two concepts. One theory explains the destabilization of reactants and one theory explains the stabilization of transition state. So now let us discuss the theories. First theory is polarization theory. Let us टेक द जनरल एग्जाम्पल। प्लैटीनम के कॉम्पलैक्स की जनरल एग्जाम्पल लैने आ कॉम्पलैक्स ले लें आप, और इनू ही आप पहला भी जनरल पढ़ रहे हैं। X is the leaving ligand which is to be substituted by Y and T is the ligand present trans to X, जेड़ा X ते trans आ। ठीक है जी, तो असी देखना वा भी T जेड़ा आ ये PTX बॉन्ड नू तुड़वाउण दे विच हैल्प किद्दां करदा। हाउ T इज़ अ ट्रांस लाइगेंड, हाउ T हेल्प्स इन destabilizing this PTX bond, how T helps break PTX bond easily, how it weakens PTX bond. So polarization theory की है। polarization की हुंदी है, polarization is distortion in electron cloud। Usually electron cloud is spherical, it is spherically symmetrical। तो जदों ਉਹਦੇ ਚ डिस्टॉर्शन आ जाती है, इलैक्ट्रॉन क्लाउड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਲਾਊਡ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਲਾਊਡ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਲਾਊਡ ਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਪੋਲਸ ਬਣ ਗਏ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਲਾਊਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਉੱਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਲ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਲ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। तो पोलराइजेशन थ्योरी की कहती आ, दिस थ्योरी सेज दैट ईजीली polarizable ligands have good trans effect। ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਟਰਾਂਸ ਇਫੈਕਟ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਦੇ ਆਰ ਗੁੱਡ ਟਰਾਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਗੈਂਡਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਲਾਊਡ ਦੀ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ੇਬਲ ਆ, ਉਹ ਗੁੱਡ ਟਰਾਂਸ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਲੈਟੀਨਮ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਪਲੈਟੀਨਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਟੀ ਲਾਈਗੈਂਡ और ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ एक्स ਲਾਈਗੈਂਡ। दिस इज़ टी ਲਾਈਗੈਂਡ एंड दिस इज़ एक्स ਲਾਈਗੈਂਡ, ठीक है जी। ਜਿਹੜਾ टी आ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ੇਬਲ ਹੈ। दिस इज़ ईजीली ਪੋਲਰਾਈਜ਼ੇਬਲ ट्रांस ਲਾਈਗੈਂਡ ਜਿਹੜਾ। ਹੁਣ प्लैटिनम इज़ मैटल, पॉजिटिवली चार्ज मैटल, ठीक है। इलैक्ट्रो पॉजिटिव आ, वो मैटल्स आर ऑलवेज इलैक्ट्रो पॉजिटिव, सो इट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज। ਇਹਦਾ कटायन होगा, हेयर वी विल बी हैविंग पॉजिटिवली चार्ज प्लैटिनम। तो पॉजिटिवली चार्जड प्लैटिनम डूज वॉट, वो क्योंकि टी ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਗੈਂਡ ਆ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ੇਬਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਲਾਊਡ ਇੱਦਾਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਫੇਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਲਾਊਡ ਪਲੈਟੀਨਮ ਵੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਲਾਊਡ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ੇਬਲ ਆ, ਉਹ ਪਲੈਟੀਨਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। प्लैटिनम will attract the electron density of T ligand because T is easily polarizable। ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਲਾਊਡ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਡਿਸਟੋਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਲੈਟੀਨਮ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੂਗਾ। T ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਲਾਊਡ T ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਹੋਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ੇਬਲ ਆ। T ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਲਾਊਡ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲੀ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ।
अगर वो ईजिली पोलराइजेबल लाइगेंड है, टी ईजिली पोलराइजेबल लाइगेंड है, तो प्लैटीनम ने उसका इलैक्ट्रॉन क्लाउड अपने वाल नूं कर लिया, तो इधरले पासे आ गया नैगेटिव चार्ज, इधरले पासे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलैक्ट्रॉन क्लाउड प्लैटीनम वाल नूं चला गया, तो इत्थे नैगेटिव चार्ज। हुण इहदे नैगेटिव चार्ज ने की कीता, जिहड़े प्लैटीनम की इलैक्ट्रॉन डेंसिटी आ उन्होंने रिपैल करता, तो प्लैटीनम की इलैक्ट्रॉन डेंसिटी इधरले पासे चली गई, इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो प्लैटीनम के इलैक्ट्रॉन क्लाउड में भी डिस्टॉर्शन आ गई, उन्होंने भी धक्का वजया, वो इधर नूं गया एक्स वाल नूं, तो जिहड़ा आ वाला नैगेटिव चार्ज आ वो एक्स दे इलैक्ट्रॉन क्लाउड नूं पुश करूगा, धक्का मारूगा, रिपैल करूगा, तो एक्स का इलैक्ट्रॉन क्लाउड भी इधरले पासे चला गया, इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ PTX बॉन्ड आ, PTX बॉन्ड बिकम्स पोलर, क्योंकि PTX बॉन्ड की इलैक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स वाल नूं चलेगी, एक्स ने खिंच ली इलैक्ट्रॉन डेंसिटी, PT ਦੇ इलैक्ट्रॉन क्लाउड की डिस्टॉर्शन करके एक्स के इलैक्ट्रॉन क्लाउड में धक्का वजा, इलैक्ट्रॉन क्लाउड के डिस्टॉर्शन आ गई, एक्स वाल चली गई इलैक्ट्रॉन डेंसिटी, ਇਹਦਾ मतलब PTX बॉन्ड पोलर हो चुकिया, तो जदों PTX बॉन्ड पोलर हो गया नाउ इट हैज़ वीकनड, बिकॉज पोलर बॉन्ड यूजअली वीक होंगे, जल्दी टुट जाते कंपैरेटिवली, तो PTX बॉन्ड बिकम्स पोलर, इट इज़ वीकनड, वीक हो चुकिया, तो जे वो वीक हो चुकिया वा तो डेफिनेटली हुण जल्दी ब्रेक कर सकता, तो ਇਹਦਾ मतलब टी ईजिली पोलराइजेबल सीगा, जिहदे करके टी का इलैक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होया, प्लैटीनम वाल गया, प्लैटीनम के इलैक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्शन ने एक्स के इलैक्ट्रॉन क्लाउड के डिस्टॉर्शन लियांदी और इलैक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम प्लैटीनम चलेगी टुवर्ड्स एक्स चलेगी, जिहदे करके PTX बॉन्ड बिकम्स पोलर एंड हैंस इट बिकम्स वीक एंड वीक बॉन्ड्स यूजअली ब्रेक ईजिली। फॉर एग्जाम्पल बेटा साडे कोल H नैगेटिव आ हाइड्राइड लाइगेंड, या साडे कोल PR3 आ ट्राई अल्काइल फॉस्फीन हो गया, I नैगेटिव हो गया, दीज आर गुड ट्रांस डायरेक्टिंग लाइगेंड्स बिकॉज दे आर ईजिली पोलराइजेबल लाइगेंड्स, ये लाइगेंड्स ईजिली पोलराइजेबल है, इस करके गुड ट्रांस डायरेक्टिंग लाइगेंड्स आ। इन्हां तो इलावा बेटा साडे कोल कुछ लाइगेंड्स हैगे आ, जिद्दां फॉर एग्जाम्पल कार्बोनिल लाइगेंड या सायानाइड लाइगेंड, ये जोड़े लाइगेंड्स हैगे आ दे आर ऑल्सो वैरी गुड ट्रांस डायरैक्टिंग लाइगेंड्स, मतलब इन्हां दा ट्रांस इफैक्ट जिहड़ा वा वो बहुत ही स्ट्रोंग आ, बट दे आर नॉट ईजिली पोलराइजेबल लाइगेंड्स। तो फिर इन्हां दे पिछे असी किहड़ी थ्योरी अप्लाई करते, किहड़ा कॉन्सैप्ट लगदा वा कि ये गुड ट्रांस डायरैक्टिंग लाइगेंड्स आ, वो साडे कोल जिहड़ी दूसरी थ्योरी आ दैट एक्सप्लेन्स पाई बॉन्डिंग थ्योरी। This theory explains the good trans effect of these ligands। तो ये ligands किहड़े आ जिहड़े आपां लिखे, these are pi acid ligands। हुण pi acid ligands किहड़े हुंदे, which are pi acid ligands। लाइगेंड का काम हुंदा वा मैटल नूं इलैक्ट्रॉन डेंसिटी देना, इलैक्ट्रॉन पेयर देना इन द एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ मैटल। लाइगेंड जिहड़े हुंदे अपने इलैक्ट्रॉन्स डोनेट करते आ। कुछ लाइगेंड्स ऐसे होंगे आ जिन्हां दे विच एम्प्टी ऑर्बिटल्स पे होंगे, जिद्दां CO CN इथाइलिनिक लाइगेंड, इन्हां दे विच एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे आ। तो मैटल दे कोल कुछ ऑर्बिटल्स होंगे जिहड़े फिल्ड होंगे आ। आपां ये हुण थ्योरीज पढ़ के आए हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दे विच सारा कुछ आपां पढ़ते हैं, CFST पढ़ते हैं दैट मैटल दे इनर ऑर्बिटल्स जिहड़े भरे होंगे आ, ते कुछ लाइगेंड्स ऐसे होंगे जिन्हां कोल एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे आ। तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड किहड़ा फ्रॉम लाइगेंड टू मैटल इलैक्ट्रॉन डोनेशन, उस तो बाद की हुंदा मैटल दे फिल्ड ऑर्बिटल दी लाइगेंड दे एम्प्टी ऑर्बिटल दे नाल ओवरलैपिंग हुंदी आ, मतलब मैटल लाइगेंड नू बैक डोनेशन करता एंड दैट बॉन्डिंग इज़ कॉल्ड बैक बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग। तो ऐसे लाइगेंड जिहड़े बैक बॉन्डिंग करन दे काबिल आ, कैपेबल ऑफ मेकिंग बैक बॉन्डिंग विद द मैटल, दे आर कॉल्ड पाई एसिड लाइगेंड्स, जिहड़े कि एसिड मतलब जो इलैक्ट्रॉन पेयर एक्सैप्ट कर लेंदे आ ते पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं विद मैटल, इन एडिशन टू द सिग्मा बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू इलैक्ट्रॉन डोनेशन फ्रॉम लाइगेंड टू मैटल। जिहड़ा पाई बॉन्ड आ बैक बॉन्डिंग आ, इट इज़ फॉर्म ड्यू टू इलैक्ट्रॉन डोनेशन फ्रॉम मैटल टू लाइगेंड, ये ऑपोजिट चलते हैं दोनों बॉन्ड्स। हुण बेटा पाई बॉन्डिंग थ्योरी जिहड़ी आ ये सानू की कहंदी आ, मान लो कि आ साडा कॉम्पलैक्स आ PT L2TX, this is the complex
एंड वी आर टू एड वाई। ठीक है, मैकेनिज्म ਆਪਾਂ पढ़िया होया कि दिस इज़ एसोसीएटिव रिएक्शन, एसोसीएटिव पाथवे विल बी फॉलोड और साढ़े कोल 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट कॉम्पलैक्स बनूगा विच विल अल्टीमेटली गिव अस द सबस्टीट्यूटेड कॉम्पलैक्स, सबस्टीट्यूटेड प्रोडक्ट आ बन जूगा अल्टीमेटली साढ़े कोल। दिस इज़ इंटरमीडिएट। ठीक है, तो बेटा हुंदा की आ कि दिस इज़ 4 कोऑर्डिनेटेड, दिस इज़ 5 कोऑर्डिनेटेड, दिस इज़ अगेन 4 कोऑर्डिनेटेड। जिहड़ा 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट आ जिन्हों ਆਪਾਂ ट्रांजिशन स्टेट का नाम भी दे सकते हैं, 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट। इट हैज़ ज्योमेट्री ट्राइगनल बाईपिरामिडल, इट इज़ लाइक PT। जदों ये पहला दिस इज स्क्वेयर प्लेनर, पंजवां लाइगेंड आया Y, इट बिकम्स ट्राइगनल बाईपिरामिडल। ट्राइगनल बाईपिरामिडल की आ इन इक्वीटोरियल प्लेन वी हैव X Y एंड T, ये तीनों इक्को प्लेन च लाई करनगे और ਜਿਹੜੇ दो बाकी बचे लाइगेंड्स आ, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। यह है ट्राइगनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री विच विल अल्टीमेटली बी कन्वर्टेड इनटू अगेन स्क्वेयर प्लेनर व्हेन X विल बी रिमूव्ड। ठीक है जी, तो हुंदा की आ कि जिहड़ा ट्रांस लाइगेंड आ T, बिकॉज T इज़ पाई एसिड लाइगेंड, T इज़ पाई एसिड लाइगेंड। तो पाई एसिड लाइगेंड का मतलब की आ कि ये मैटल तो इलैक्ट्रॉन डेंसिटी वापस ले लैंदा वा। जदों ये मैटल तो इलैक्ट्रॉन डेंसिटी लऊगा, मतलब पाई बॉन्ड की हुंदा, वॉट इज़ पाई बॉन्ड, जिन्हों आप बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं, पाई बॉन्डिंग और विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। मैं हुणे सारा तुहानूं एक्सप्लेन करके हटिया वां। इट इज़ M2L इलैक्ट्रॉन डोनेशन, मैटल तो लाइगेंड नूं इलैक्ट्रॉन डेंसिटी वापस करनी, बैक डोनेशन पाई बॉन्डिंग। तो वो की आ मैटल हल्की हो जाती, मैटल तो इलैक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है, मतलब वो उपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, मैटल ने इलैक्ट्रॉन डेंसिटी देती, वो उपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो मैटल के उपर जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता वा तो फिर वाई का अटैक करना ईजी हो जाता। वाई अटैक्स अपॉन द मैटल, मतलब प्लैटिनम ने इलैक्ट्रॉन डेंसिटी वापस T नूं देती, बिकॉज T की आ पाई एसिड लाइगेंड, उन्हें प्लैटिनम नाल बैक बॉन्डिंग की आ, प्लैटिनम के उपर इलैक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई। तो फिर वह फायदा किने चक्या, वाई ने, वाई फटाफट अपने इलैक्ट्रॉन्स लैके आए तो प्लैटिनम पर अटैक करता। यदा मतलब दिस इंटरमीडिएट इज़ फॉर्मड वेरी फास्ट। तो जो इंटरमीडिएट फास्ट बन रहा है यदा मतलब यह है कि इंटरमीडिएट स्टेबल आ, इंटरमीडिएट स्टेबल आ, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल आ। जी मैं तुहानूं पहलां गल दस के हटिया सी भी 2 तरीके हुंदे आ रिएक्शन नूं फास्ट करन दे, या तो रिएक्टेंट दी नूं अनस्टेबल कर दो, ਉਹਦੀ एनर्जी ਵਧਾ दो, जिद्दां कि आपां इस थ्योरी च पढ़ के आए हैं कि PTX बॉन्ड जिहड़ा सीगा, दिस PTX बॉन्ड इट इज़ वीकनड बाय ट्रांस लाइगेंड। आ ट्रांस लाइगेंड जिहड़ा ईजिली पोलराइजेबल है, उन्हें PTX बॉन्ड नूं वीक करता सी। PTX बॉन्ड वीक हो गया, कहने का मतलब हो गया कि आ सारा मॉलीक्यूल अनस्टेबल हो गया, रिएक्टेंट की एनर्जी इनक्रीज़ कर गई, EA घट गई, रेट वध गई। दूजी थ्योरी पढ़ रहे हैं पाई बॉन्डिंग थ्योरी, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ आ ट्रांजिशन स्टेट जल्दी आ रही है, आ जल्दी बन रहा, मतलब ये स्टेबल हो गया। स्टेबल हो गया मतलब ये एनर्जी घट गई, ये एनर्जी घट गई, बाय स्टेबलाइजिंग द ट्रांजिशन स्टेट रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स हाई। तो ये थ्योरी पाई बॉन्डिंग थ्योरी जी आ वो काम करती इस बेसिस पे कि पाई बॉन्डिंग जोड़े लाइगेंड्स कर लेंगे, जोड़े पाई एसिड लाइगेंड्स होंगे आ, वो मैटल की इलैक्ट्रॉन डेंसिटी का भार हल्का करते हैं, दे डिक्रीज द इलैक्ट्रॉन डेंसिटी अपॉन मैटल, ड्यू टू विच द अटैक ऑफ एंटरिंग लाइगेंड बिकम्स फैसिलिटेटेड। It is facilitated due to which the transition state or the 5 coordinate intermediate is formed very fast. So activation energy is less, so rate hence is very high. तो ये बेटा साढ़े कोल 2 theories आ जिहड़ियां कि ट्रांस इफेक्ट नूं explain करदियां, that why some ligands are good trans attracting ligands and why are weak trans attracting ligands.